السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا نبينا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ اما بعد، میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہوا، کرم ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے اس جمعے کے دن ہم سب کو مسجد میں آنے کی توفیق عطا فرمایا۔ سب سے پہلے میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ آپ کے سامنے جو بات کہنے کے لیے آیا ہوں وہ صحیح طریقے سے بولنے کی اور سمجھانے کی، اور پھر ہم سب کو کہنے سے سننے سے زیادہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ میں آپ کے سامنے پچھلے جمعہ سورہ کہف کا پہلا واقعہ اصحاب کہف کے بارے میں بیان کیا تھا۔ سورہ کہف میں 4 بڑے واقعات ہیں، ایک اصحاب کہف، دوسرا اصحاب باغ والا، اور تیسرا موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا، اور چوتھا ذوالقرنین کے بارے میں۔ آج انشاءاللہ میں آپ کے سامنے اصحاب باغ اور موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا واقعہ انشاءاللہ میں آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ اصحاب کہف کا واقعہ ایک بہت بڑا سبق سکھانے کا واقعہ تھا۔ جو لوگ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کے بارے میں یقین نہیں رکھتے، ان لوگوں کو بہت بڑا سبق سکھا رہا ہے وہ واقعہ۔ اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کو 309 سال بغیر کھانا پینا زندہ رکھا اور پھر ان کو اٹھایا 309 سال کے بعد، تو ہم کو کل مرنے کے بعد قیامت کے دن کیوں نہیں اٹھائے گا؟ وہ ضرور اور ضرور اٹھائے گا ہم لوگوں کو، اور ہم سے حساب بھی لے گا۔ وہ لوگ اصحاب کہف والے لوگ، ان لوگوں کو راستہ پتہ نہیں، جب دعا مانگ رہے ہیں اپنے رب سے، ربنا آتنا من لدنک رحمتا وہیئ لنا من امرنا رشدا، یہ ہمارے رب، یہ ہمارے اللہ، تو اپنی خاص رحمت ہمارے اوپر نازل فرما اور ہماری رہنمائی فرما، ہم نہ جانے کا سیدھا راستہ بتا بول کے وہ لوگ دعائیں کر رہے ہیں۔ یا اصحاب باغ کے بارے میں اللہ تعالی ایک مثال بیان کرتا ہے۔ مکہ کے مشرکین سردار ہونے کی وجہ سے، مالدار ہونے کی وجہ سے بہت فخر کرتے تھے اور غریبوں کو نیچا سمجھتے تھے۔ وہ لوگ غریبوں کی عزت نہیں کرتے تھے، ہم مالدار بول کے فخر کرتے تھے۔ ان لوگوں کو ڈرانے کے لیے اور قیامت تک آنے والوں کے لیے ایک بہترین واقعہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا سورہ کہف میں۔ وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بولتا ہے، دو انسان تھے، ان میں سے ایک کو اللہ تعالیٰ نے غریب رکھا اور ایک کو مالدار کرا۔ جو مالدار ہے اسے اللہ تعالیٰ
दो बगीचे दिया, दो बाग दिया, और वो बाग में अंगूरे डालता सो, और खजूरों के उसके अतराफ में खजूरों के झाड़ा खड़ा करा अल्लाह ताला, और बीच में खेती उगाता था। और अल्लाह ताला वो इंसान को तकलीफ नहीं होना बोल के अल्लाह ताला खुद ही वो रास्ते में पानी भी अल्लाह चला डाला। एक रास्ता देखो, वो रास्ते में पानी भी अल्लाह ताला खुद ही चला डाला, इसका क्या भी 1 रुपया भी मेहनत नहीं सरका। और दूसरा गरीब, और उसे औलाद भी ज्यादा दिया अल्लाह ताला, जो मालदार। ये इन लोगों की वाकया बोल रहा है अल्लाह ताला सूरह कहफ में। अब क्या हुआ कक्के, तो वो मालदार कने 2 बागा है, 2 बगीचे हैं उसके पास, उसमें अंगूरा है, और अंगूरा हवा जर्रा हवा है तो गिर जाते को बोल को अल्लाह ताला देखो कैसा इंतजाम करा है कि उसके अतराफ में, उसका उधर कोने में इधर कोने में अल्लाह ताला खजूरों के झाड़ा उगा डाला। जब ज्यादा हवा नहीं आता, वो खजूरे के झाड़ा रहते होने से उधर इधर बीच में खजूरा और खेती उगालता सोने। वैसा मजबूत रहने के वास्ते अल्लाह ताला खजूर के झाड़ा खड़ा कर डाला। वो जमाने में खजूर और अंगूर बहुत महंगाई थे, रेट बहुत ज्यादा था। वो जमाने में बहुत ज्यादा बरतते सो भी खजूर और अंगूर, और उन खेती भी उगाता सो अलग से। अबे इतना बगीचे को पानी होना, पानी कहां से आता फिर? वो पानी आने का रास्ता भी और पानी को भी अल्लाह ताला ही दे डाला उसे। और उन्हें बाहर से अभी ज्यादा बिजनेस भी है उसे, बाहर अलग से तिजारत भी है, उसका बिजनेस भी है। ये नहीं सरकाचे, ये 2 बागा, ये 2 बगीचे, ये अंगूरा का, खजूरा का, खेती का, ये नहीं सरकाचे, अलग से उसे तिजारत भी है बाहर। अब अल्लाह ताला उसे औलाद भी दिया कसरत से। उसका साथी एक जना था, उन गरीब, अल्लाह ताला उसे गरीब रखा और इसको अमीर रखा। तो इंसान अपनी माल दौलत को देखकर फकर में आ जाता और अपने आप को भूल चुकता, अपने आप को भूल जाता इंसान अपने माल और दौलत की वजह से। अब वहां भी वही हुआ। एक दफा वो दोनों दोस्त मिलके जा रहे हैं बगीचे में। जब इन बगीचे में दाखिल होते हुए कुरान का अल्फाज यह है कि अपने जान के ऊपर जुल्म करते हुए बाग में दाखिल हुआ और कहने लगा, अल्लाह ताला खुद कुरान मजीद में फरमाता है सूरह कहफ में, उन्हें अपने जान के ऊपर जुल्म कर को बगीचे में, बाग के अंदर दाखिल हुआ और कहने लगा, क्या कहने लगा? ये पूरा मेरा बाग बगीचा, मेरे अंगूरा, मेरे खजूरा के दरख्ता और मेरी खेती, ये पूरे कभी भी खत्म नहीं होता। वो बोल को बोला उन्हें, कभी भी ये खत्म नहीं होता, ये माल अभी बढ़ता रहता, मेरी माल दौलत में कमी नहीं आती को बोल को बोला उन्हें। मेरा 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 को बोल को बोला हुआ, लेकिन ये अल्लाह ताला पूरा हमें दिए को बोल को बोलता है। अल्लाह ताला उन्हें जर्रा भी तकलीफ नहीं सरका। वो बगीचे को, बागा को, 2 बागा को पानी का इंतजाम भी खुद अल्लाह ही करा, उन खुद नहीं करा। अभी ने ऐसा बोलता है। और दूसरा गरीब दोस्त उन बोलता है, क्या को बोल को अल्लाह का शुक्रिया अदा करे, अल्लाह की शुक्रिया अदा करे, तू फकर में आको ऐसे बातें बोलना न को, तो बोल को बोलता है दूसरा दोस्त। और कयामत का असल जिंदगी है, आखिरत है, असल जिंदगी वो ये नहीं को बोल को उन बोलता है दूसरा उन गरीब। इन मालदार का है आखिरत नहीं, क्या भी नहीं, अगर बिलफर्ज आखिरत है तो भी मैं दोबारा अपनी रब की तरफ
लौटूं तो भी, दोबारा मैं अल्लाह की तरफ गए तो भी, अपनी रब की तरफ गए तो भी, या मुझे कितना है तो माल दौलत है कि वैसाच मुझे वहां भी रहता आखिरत में भी गोबोल को बोलता हूं। अमल क्या भी करना नहीं और अल्लाह को मानना नहीं। अगर मानता भी है तो देखो कैसा बोलता है कि यार दुनिया में है कैसा है तो मैं माल दौलत मेरे का नहीं है कि आखिरत में भी कल मेरे पास माल दौलत रहता वो बोल को बोलता है। जब जब वो गरीब दोस्त है, वो गरीब दोस्त बोलता है तू ऐसा फकर में रहना नको, मस्ती में रहना नको, फकर जाना नको, तू बाग के अंदर दाखिल होते स्टम्पो ऐसा कहीं को बोला नहीं। अल्लाह की दी हुई नेमत ये, अल्लाह चाहा तो मेरे पास रहता, अल्लाह नहीं चाहा तो 2 मिनट में मेरे पास से खींच लेता। को बोल को तू कहीं को बोला नहीं और तू मेरे सामने इतराता है मेरे कने इतना पैसा है, मेरे कने इतना माल है और मुझे औलाद भी है को बोलता है तू। वो जमाने में औलाद को भी फकर समझते थे, क्योंकि अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाता है मैं जिसे चाहता हूं उसे बेटे गिफ्ट में देता हूं, तोहफे में देता हूं, गिफ्ट में देता हूं, और मैं जिसे चाहता हूं बेटियां तोहफे में देता हूं, और मैं जिसे चाहता हूं बेटा बेटी दोनों तोहफे में देता हूं, गिफ्ट में देता हूं, वो बोलता है अल्लाह ताला कुरान मजीद में। लेकिन आज हमें अपने बच्चों को बोझ समझ रहे हैं। बच्चे ज्यादा पैदा हो जाएंगे तो उन लोगों को हम कहां से पालेंगे। हालांकि कुरान मजीद में खुद अल्लाह ताला फरमाता है हर एक इंसान अपनी रोजी रोटी लेकर ही दुनिया में आता। लेकिन आज हमें यह समझते हैं हमारे बच्चे को हमें कैसा पालते, ज्यादा बच्चे हैं तो। लेकिन वो जमाने में फकर करते सो मुझे इतने बच्चे हैं वो बोल को, उन भी वो फकर करता है मुझे बच्चे भी ज्यादा हो। वो गरीब है, दोस्त बोलता है तू ऐसा बोले जानी और तू आखिरत के बारे में ये बोलता है आखिरत नहीं होती का कहता है। मैं तो एक रब को मानता हूं जिसका नाम अल्लाह है, वो उसकी शान बहुत बड़ी है, वो जिसे चाहता है रोजी देता है, जिसे चाहता है खींच लेता है, और पूरी उसकी ही ताकत है। ये पूरा अल्लाह का फजल और करम है। मैं तो इसे अल्लाह को मानता हूं जिसने नुतफा एक नापाक पानी का कतरे से हम लोगों को इंसान बनाया, हमको बनाया। नापाक पानी का कतरा उसके ऊपर गोश्त चढ़ाया और भरपूर इंसान बनाया, पूरी इंसानियत को अल्लाह ताला पैदा करा। मैं तो उसके ऊपर ईमान लाता हूं और उसके साथ किसी को भी शरीक नहीं करूंगा, तो बोलता है। और जहां तक तेरी नेमत के बारे में बोलता है, अल्लाह चाहा तो 2 मिनट में तेरे पास जो नेमत है, माल दौलत है, वो पूरा खत्म कर डालता। आसमान से कोई ऐसा एक अजाब भेजता या आसमान से एक मुसीबत भेजकर पूरा खत्म कर देके 2 मिनट में वो तेरे पास से खींच ले सकता। और जहां तक मेरा मामला है, अगर मेरा रब चाहा तो, मेरा अल्लाह चाहा तो मुझे गनी कर डालता, मुझे मालदार कर डालता, वो बोलता है वो आदमी, वो गरीब आदमी। बाद में ये आदमी कैसा है तो बोले कि वैसा हुआ, अल्लाह ताला आसमान से मुसीबत पहुंच जाता, वो क्या होता उसका बाग पूरा मेरा मेरा, वो बोल को 2 बगीचे मेरे, अंगूरा है उसमें, खजूरा है, मैं खेती उगाता हूं, वो बोल को फकर करे कि वो पूरा निस्तो नाबूद कर डाला अल्लाह ताला, उसे पूरा बर्बाद कर डाला। उसे 2 मिनट उजाला होगा आपको देखा पूरा बर्बाद हो गया, अल्लाह ताला बर्बाद कर डाला। इससे ये बहुत सबक हासिल होता हम लोगों को। अल्लाह ताला फकर करते से उससे कभी पसंद करता नहीं, अल्लाह ताला इतराते से उससे भी कभी भी अल्लाह ताला पसंद नहीं करता। उन्हें ये अल्लाह का दिया हुआ नेमत है,
अल्लाह का फजल और करम को बोलकर अल्लाह का शुक्र अदा करे तो अल्लाह ऐसा बिल्कुल भी नहीं करता था। लेकिन उन इतराया और दूसरों को कमतर समझा। ये वाकया मक्का के मुश्रिकीना को कई को समझाता है कि तो वो टाइम पर ओला का भी अपनी माल दौलत को देखो फकर में जाते सो और अल्लाह की नाफरमानी करते सो। वो लगा कुछ सबक सिखाना को बोलकर अल्लाह ताला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये वाकया सुनाता है। अल्लाह ताला ऐसा ही समय बर्बाद कर डाला वो लगा को बोल को। अब इससे हमें हमारे पास माल दौलत है तो अल्लाह की शुक्रिया अदा करना, अल्लाह की शुक्र अदा करना। अगर गरीब लोग, अब या इसमें गरीब भी था लेकिन वो क्या कहता है, उन्हें हो मैं गरीबी चे अल्लाह को मैच मिलो ऐसा बात आ गई नहीं सर का। उन्हें मैं अल्लाह को जानता हूं, अल्लाह 2 मिनट में मुझे मालदार कर सकता अगर वो चाहा तो, वो बोल को बोलता है उन्हें। उन गरीब होकर भी अल्लाह के ऊपर उसे यकीन है अल्लाह चाहा तो मुझे जरूर गनी बना डालता, मालदार बनाता। तेरे कने है सो माल दौलत खींच ले सकता 2 मिनट में को बोल को वो इंसान बोलता है, वो जो गरीब दोस्त है वो। इससे हमने ये मालूम होता है हमारे पास कितना भी माल दौलत हो, कितना भी बड़े हो, लेकिन हमें इतराए यानी फकर नहीं करना, मस्ती नहीं रहना, फकर नहीं करना हमारी माल दौलत के ऊपर। ये अल्लाह का दिया हुआ भीख है, अल्लाह भीख में डाला हम लोग को। जब इसकी कदर करना, अल्लाह की शुक्रिया अदा करना, इन नेमतों के ऊपर है जो हमको दिया है, उन नेमतों के ऊपर है अल्लाह की शुक्रिया अदा करना। आज देखो हम गरीब लोगों को भी एक सबक है, गरीब होकर भी अल्लाह ताला उनको कितना अच्छा बनाया, कहां पे भी क्या डिफॉल्ट नहीं है, डिफेक्ट नहीं है, कहा भी पूरा बेहतरीन अंदाज से अल्लाह ताला पैदा करे। अगर मालदार पैदा कर को उसकी जबान ले लिया तो क्या, उसे बोलने की ताकत नहीं दिया तो क्या हालत उसका, मालदार होने के बावजूद भी कितना मुसीबत में रहता उन्हें, उसका हाथ पांव नहीं सर का पैदा करा तो। लेकिन अल्लाह ताला का लाखों करोड़ों शुक्र, उसने हमको बेहतरीन तरीके से बनाया, ये उसकी बड़ी नेमत। और हम लोगों को सांस लेने का मौका भी देता है, कितनी छोटी बात है। अगर हम ना सांस लेने में मुश्किल हो जाए तो हमें मर जाते, हम ना सांस लेना नहीं हुआ तो मर जाते हमें। ये गरीब नहीं, अमीर नहीं, मालदार नहीं, सबको ये देता है अल्लाह ताला फ्री में, पैसे क्या भी लेना नहीं, क्या भी नहीं, पूरा ऑक्सीजन अंदर दे डालता है, हवा में रख डालता है, ले लेना आराम से खींच लेना उसे। वो सांस रोक डाला तो क्या होता हमारी हालत। ये कितनी बड़ी नेमत है, लेकिन हमारे दिन सारे हमारे हंके सामने ये होता है, ऐसे हम इसे लाइट ले लेते हैं। एक बार जरा उसके बारे में सोचे तो, गौर करे तो उसमें हमने कितना बड़ा नेमत कहा था कि वो छोटा नेमत भी, जैसा कि बहुत सारे अल्लाह ताला करिश्मे पैदा करे। और सूरह कहफ में तीसरा वाकया मूसा अलैहिस्सलाम और खिजर अलैहिस्सलाम का। एक दफा मूसा अलैहिस्सलाम अपने कौम के लोगों के पास रहते, उसमें से एक इंसान पूछता पूरी दुनिया में इल्म में कौन ज्यादा को बोल को, इल्म किसके पास ज्यादा है। मूसा अलैहिस्सलाम फौरन बोलते मैं, मेरे पास ज्यादा इल्म है। कहीं के तो वो लगा पूरे मामूल इंसान, इनो नबी, फिर को रसूल, अल्लाह के प्यारे, फिर को अल्लाह के महबूब, अल्लाह का कलीमुल्ला, डायरेक्ट अल्लाह से बात करते सुनो, अल्लाह से डायरेक्ट मूसा कलीमुल्ला, मूसा अलैहिस्सलाम डायरेक्ट बात करते सुनो। उन्हें वो हिसाब से वो बोले हो मेरे कने है दुनिया का इल्म को बोल को। इसमें अल्फाज में इस्तेमाल करना गलत हुआ मूसा अलैहिस्सलाम से। नबिया पैगंबरा मासूम होते, गुनाह से पाक होते, ये गलती भी नहीं। वो बात करते सो बात जो अल्फाज जो बोले उसमें जरा गलती हुआ इनासी। नबियों को गलतियां को अल्लाह ताला फौरन तंबी करता, फौरन लगा को वो गलतियां को सीधा कराता अल्लाह ताला। अल्लाह ताला बोले तुम्हें कैसा बोल सकते तुम्हारे कन पूरा इल्म है को, तुम्हें दीन का इल्म मेरे पास है करते तो बात अलग है, पूरा इल्म मेरे पास ज्यादा है को बोल को बोले तुम ऐसा कैसा बोल सकते। खिजर बोल के मेरा एक बंदा है उसके पास जाओ, उसका नहीं है सो इल्म क्या होगी तुम्हें देखो, वो इल्म तुम ना मैं दियो नहीं, जब तुम ना मालूम होता मैं तुमने नहीं दियो, सो भी वोट दे तो मेरे दूसरे बंदा को भी कहो
तुम ना एक जना कुछ पूरे इल्म में दे तो नहीं, दीन का इल्म मैं तुम ना दियो, दूसरे दूसरे बंदों को दियो, जाओ को बोलते रास्ता बोलता अल्लाह ताला कहा है तो दो समुद्र मिलते की वाच है तेरा जाने का असल हदफ तेरा वो को बोलते। अब वो निशानी क्या अल्लाह का कहते तो जो मछली मरगी से मछली पकाले को ले गए से मछली जिंदा हो जाए को पानी में चल जाओ रास्ता खोल लेती रहती, वो एक निशानी तेरी को बोलते मूसा अलैहिस्सलाम में खाना पानी ले ले को अपने गुलाम को अपने खादिम को एक जने को ले ले को अपने काम वाले के एक जने को यूशा उनका नाम। मूसा अलैहिस्सलाम जाने के बाद यूशा को भी अल्लाह ताला पैगंबर बनाया, नबी बनाया यूशा अलैहिस्सलाम। वो टेम्पो अभी उन्होंने नबी नहीं बने, मूसा अलैहिस्सलाम है इस टेम्पो, यूशा उनके नाम। यूशा को साथ ले को सफर में निकलते, चलो गेंगे खिजर करने को बोल को खिजर अलैहिस्सलाम निकलते, यहां से सफर शुरू करते। रास्ते में थकावट होती उनको, वो थक जा को एक झाड़ के नीचे आराम करेंगे वो बोल को लेट जाते मूसा अलैहिस्सलाम। इन्होंने लेट जाको रहते, यूशा उना के हंके के सामने छे इनो मरगे सो मच्छी जिंदा हो जाको पानी में रास्ता खोल लेते चल जाते रहता, इना के हंके सामने छोटा पूरा यूशा। इन्हों क्या करते तो मूसा अलैहिस्सलाम सो जाते हैं, थक जा को है, उठे बस तो बोलेंगे को समझते, कई कब नींद में डिस्टर्ब करना, उठे बस तो बोलेंगे थक जा को है ना समझते। शैतान क्या करता गए तो भूला डालता इनासी, भूला डालता इन्हें भूल जाते ये बात ही छे। वो क्या मरगी सो मछली जिंदा हो जाओ को रास्ता खोलने को समुद्र में जाने का एक कितना बड़ा अजीब है, एक इतना बड़ा वाक्य कैसा भी सरगेगा बोल को हमें समझ सकते। लेकिन वो टाइम को यूशा मूसा अलैहिस्सलाम के साथ रहे, मूसा अलैहिस्सलाम लाठी को सांप बना डालते सो, वो बहुत बड़ा मोजिजा। और समुद्र में लकड़ी मारे तो समुद्र के बीच में ये पहाड़ के नादे पानी खुल जाको, पहाड़ के नादे ऐसा खड़ जाको उधर इधर बीच में रास्ता खुल जाता, लाठी मारे तो मूसा अलैहिस्सलाम। ये मच्छी जिंदा होने से भी बहुत बड़ी करामत आई। वो बड़े देख को इना को ये छोटा होने से उन्हें बिसर गए, शैतान भुला डाला इना को यूशा को। फिर को उठते नींद में से उठ को निकलते, फिर को सफर शुरू करते। सफर शुरू करे तो फिर को बहुत दूर जाने के बाद भूख लगती, भूख प्यास लगती, मूसा अलैहिस्सलाम को बोलते भूख लगती है प्यास लगती है खाना पानी लेकर खाना खाएंगे हमें को बोल। जब खाना को बोल को कब तो बोलेगी यूशा को याद आ जाता जब हुआ सो, जब बोलते ये कह रहा है वो मच्छी ऑलरेडी जिंदा हो जा को पानी में वो समुद्र में रास्ता खोले तो चल गई को बोल को बोलते। मूसा अलैहिस्सलाम गुस्सा पड़ते नहीं, हमें रहना है तो गुस्सा पड़ जैसो, हमें जाने का सफर हो चाहिए उसे पार हो जाओ इतने दूर हमें मर को जाते हैं सामने, तो अब तक का कहीं को बोला नहीं को बोले हमें गुस्सा पड़ते ऐसा। मूसा अलैहिस्सलाम ऐसा नहीं के अच्छा चलो है तो हमारा सफर पीछे छे, हमारा असल हदफ वहां छे वो जगह छे, फिर चलो हमें पीछे गिंगे वो बोल पीछे चले जाते। फिर को वहां जाने के बाद खिजर अलैहिस्सलाम दिखते, उन्हें को सलाम पेश करते अस्सलाम वालेकुम वो बोल। वो सलाम का जवाब देखो खिजर अलैहिस्सलाम में कौन तुम्हें आज तक मैं किसी भी दिखो नहीं तो ये इलाके में सलाम करता सुने, कौन भी सलाम नहीं करता तो ये इलाके में तुम्हें कौन को बोल को पूछते। उन्हें बोलते मूसा अलैहिस्सलाम मैं मूसा, जस्ट ये बोलते होता मैं मूसा, उन्हों बनी इसराइल का मूसा, बनी इसराइल का मूसा, हाँ बनी इसराइल का मूसा। इन्हें को कैसा मालूम? अल्लाह ताला पहले से ही इल्म दिया, वो ना अल्लाह ताला इन्हें को बताना कर लेता है मूसा अलैहिस्सलाम को पूरा तुम्हारे करने से नहीं है इल्म है, भाई फलाना मेरा बंदा खिजर उसके पास जो तुमने मालूम होता मैं उसे अलग से इल्म दियो, मेरे अपनी रहमत में से दियो इल्म को बोल को बोले। इन्हों मूसा को बोल को जस्ट बोले वत्ता छे, इन्हों बोला ले इना का पूरा पुट्टू पुराणम पूरा बोला ले, इना का पैदाश करने से पूरा बोला ले नो बनी इसराइल का मूसा क्या तू, हाँ बनी इसराइल का मूसा में। जब मूसा अलैहिस्सलाम को मालूम हो गया इन्हों मामूली इल्म वाले नहीं, अल्लाह ताला बोले ऐसा सही चे को बोल को, या परमिशन पूछते मूसा अलैहिस्सलाम क्या कहो क्या मैं आपके साथ सफर कर सकता हूं क्या? सफर कर को अल्लाह अपनी खास रहमत में से तुमने जो इल्म दिया वो इल्म मैं भी सीखना कर लेता हूं, वो इल्म मैं भी सीखना कर लेता हूं। देखो इना का मकाम है खिजर अलैहिस्सलाम से भी बहुत ज्यादा मूसा अलैहिस्सलाम, बड़े 5 रसूल उसमें मूसा अलैहिस्सलाम भी एक बड़े रसूल कलीमुल्लाह, अल्लाह से डायरेक्ट बात करते सुनो, उतने बड़े पैगंबर रसूल होकर भी खिजर अलैहिस्सलाम के पास इल्म सीखने के लिए परमिशन पूछते हैं।
एक उस्ताद को एक स्टूडेंट कैसा है तो पूछता कि स्टूडेंट एक कैसा है तो पूछता कि वैसा छे खिजर अलैहिस्सलाम को मूसा अलैहिस्सलाम पूछते हैं मुझे तुम्हें परमिशन दिए तो मैं तुम्हारे साथ सफर कर को अल्लाह तुमने दिया सो इल्म में मैं भी सीखता हूँ बोल को फौरन खिजर अलैहिस्सलाम बोलते तुम्हें सबर कर सकते नहीं तुम्हें मेरे साथ सबर कर सकते नहीं को बोलो बोलते मूसा अलैहिस्सलाम फौरन बोलते इंशाअल्लाह अगर अल्लाह चाहा तो मैं सबर करूंगा वो बोल को बोलते अच्छा चलो तो बोलते सफर शुरू होती दोनों की एक किश्ती बोट किश्ती वो बोट में ये लगा सफर शुरू करते दोनों चढ़ को जाते रहते खिजर अलैहिस्सलाम में उसे तोड़ा होते बोट को एक साइड को चकले को तोड़ा होते बोट को मूसा अलैहिस्सलाम को गुस्सा आता गुस्सा को फौरन पूछते ये लोग खिजर अलैहिस्सलाम बोलते क्या कहो तुम्हें सबर कर सकते नहीं मेरे साथ ये सफर कर सकते नहीं सबर कर सकते नहीं सफर में को उन्होंने नहीं कहते अच्छा जंगे चलो क्या करूं तो भी मैं बोले तक का तुम्हें मुझे क्या भी क्वेश्चन करे जाने को बोलते या मूसा अलैहिस्सलाम है फौरन या क्वेश्चन करते गुस्सा हो जाओ तुम्हें कहीं कैसा करे सबको समुद्र में मन्ने मारना समझते है क्या तुम्हें ये चकले को तोड़ डाल को किस्ती का चकले को तोड़ डाल को बोल कहते मैं तुमने बोला ना तुम्हें सबर कर सकते नहीं को बोल को कहते खिजर अलैहिस्सलाम फौरन बोल को अपनी गलती मालूम हो जाको मूसा अलैहिस्सलाम को माफ करो गलती हो गया इंसान से गलती होती मुझे माफ करो मूसा कलीमुल्लाह होकर भी देखो कैसा बातें बात करते हैं कि मूसा अलैहिस्सलाम माफी मांगते हैं खिजर अलैहिस्सलाम से उतना बड़ा मकाम होकर भी अल्लाह ताला के नजदीक उन्हें माफी मांगो अच्छा दोबारा सेकंड चांस दियो मुझे कहते अब वह चल जाती वो हो जाता दूसरा इन्हें जाते टेम्पो समुद्र के दरमियान एक किस्ती में जाते टेम्पो एक चिड़िया को समुद्र में से पानी पी को चल जाती खिजर अलैहिस्सलाम बोलते अब क्या हुआ कि देखे क्या वे देखो चिड़िया को पानी पी को चल गई समुद्र में पानी तुम्हारे कने मेरे कने है सो इल्म कहता करके तो वो चिड़ी इतना बड़ा समुद्र में आको कहता है तो पानी पी को गई कि वत्ता तुम्हारे कने मेरे कने है सो इल्म कितना बड़ा समुद्र है चिड़ी कितना पानी पी सकती जर्रा पी सकती उन्हें वो कहता जर्रा है तो पी की वो इल्म तुम्हारे कने मेरे कने है सो पूरा समुद्र है ना ये पूरा समुद्र का इल्म सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला के पास है सो को बोलते अब ये हो जाने के बाद दूसरा एक नौजवान एक जवान लड़का आता उसे खिजर अलैहिस्सलाम कत्ल करवाते मन्ने मार डालते मूसा अलैहिस्सलाम असल संभाल सकते नहीं बगैर गुना एक इंसान की कत्ल करे तुम्हें बहुत बड़ी गलती करवा ले तुम्हें ऐसा कहीं को करे तुम्हें उन क्या गलती करे उसके बारे में तुम्हें क्या मालूम उन क्या करे को बोल को सिक्का मन्ने मार डाले कत्ल करे को बोल को मूसा अलैहिस्सलाम पहले बार जरा हल्का बोले अब ये दूसरे मौके पे खिजर अलैहिस्सलाम बहुत सीरियस होने बोलते डांट दे खिजर अलैहिस्सलाम हमें गुस्से में बोलते देखे वैसा मैं तुम्हें बोला ना तुम्हें सबर कर सकते नहीं को डांट के अल्फाज से बोले मूसा अलैहिस्सलाम को पहले अल्फाज में मामूल होने बोले पहले बार गलती हुई स्टम्पो दूसरे बार जरा सीरियस होने बोले गुस्से से बोल डाले नो फिर को अच्छा माफ करो गलती हो गया मेरे से मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह पैदा करना भी इससे वैसा पैदा करा उना के हनका सामने छोटी गलती होती है तो भी इन्हें संभाल सकते नहीं मूसा अलैहिस्सलाम है उना को वैसा पैदा करा अल्लाह ताला छोटी गलती है तो भी असल संभाल सकते नहीं मूसा अलैहिस्सलाम सबर कर सकते नहीं नो देख सकते नहीं उसे होने से वैसा सबर नहीं कर सके अब कहते लास्ट चांस दियो फिर को मैं कोबोल को गलती करूंगा कह तो सबर नहीं कर सकूंगा कह तो तुम्हारा रास्ता अलग है मेरा रास्ता अलग है तुम्हें मैं अलग हो गएंगे कोबोल को बोलते अब इन्हों खुद मूसा अलैहिस्सलाम खुद ही छे इन्हों करे सो गलती को भी सोल्यूशन होने बोलते हैं मैं चल जाता हूं अलग हो जाता हूं कोबोल को अच्छा सफर करते करते एक गांव में दाखिल हुए एक गांव में दाखिल हुए तो लगा मुसाफिराना वहां के लोगों को पूछते हमें मुसाफिरा हमरा खाना खिलाओ वो लगा मालदारा होकर भी वो लगा खाना नहीं खिलाते ये लगा वहां एक दीवार रहती वो दीवार गिर जाने को कमजोर हो जाती वो दीवार ये दीवार को खिजर अलैहिस्सलाम
हाथ ऐसा मार कर स्टडी करवा दी, मजबूत हो जाता वो दीवाले। अब एक टॉपिक काम वाला सीमेंट लगा को ये कर को कितना घट्टू करता, उतना टाइम भी नहीं, खाली हाथ से ऐसा करे, अल्लाह का करिश्मा हो उन्ना के हाथ के ऊपर है, ऐसा कहेगा ना पूरा स्टडी हो गया, दीवार पूरा मजबूत हो गया। मूसा अलैहिस्सलाम फिर पूछते तो मैं कहीं कैसा करे, ये लगा मुसाफिरा की इकरामिश नहीं करे, हम ना खाना पानी भी नहीं दिए, लगा ये लगा कर नहीं सी तुम्हें फ्री होने कहीं करे ये काम है, वो क्या कि पैसे लेको करे तो हमें खाते सोना बाहर है, वो पैसा सी कोस के जरा अंदर खाते सोना, हमें भूख लगती है ना, तो बोलो मूसा अलैहिस्सलाम बोलते अब एक तुमना मेरा अलग होने हो जाने का वक्त आ गया, को बोलते खिजर अलैहिस्सलाम तुम्हारा मेरा अलग होने का वक्त आ गया, लेकिन तुम्हें जिनके बारे में सबर नहीं कर सके ना वो पूरा मैं पहले बोल को तुम ना बाद में तुम ना भिजाता हूँ बोल को बोलते, या बहुत मामूल सी बोल डालते। खिजर अलैहिस्सलाम गुस्सा पड़ते, बहुत मामूल सी बोल डालते, अब अलग हो जाते हैं होने से मामूल सी बोलते, तुम्हें नहीं सबर कर सके ना वो बारे में पूरा मैं तुमने एक्सप्लेन करता हूँ, पूरा बताता हूँ क्या करने का, तो बोल को बताती। पहले वाक्य, वो समुद्र में जाते टाइम वो किश्ती को वो बोट को एक तरफ तोड़ डालती, वो कई को तोड़ेगा कह तो मैं ये पूरा तोड़म सो वह एक जालिम बादशाह रहता सो, उन्हें अच्छे है सो बोटा पूरे अपने कब्जे में ले लेता सो, अपने कब्जे में ले लेता सो। ये लगा देखे तो गरीब मिस्कीन लोग, ये लगा का खाना पीना रोटी पूरा ये लगा का ये किश्ती के ऊपर बोट के ऊपर लगा को अलग सी क्या भी नहीं है लगा का नहीं कमाने के वास्ते, ये एक ही जरिया कमाने का, ये भी उन ले ले तो ये लगा बेचारे कासी खाते कासी पीते ये लगा होने सी उसे आइबदार बना डालो, उसे तोड़ डालो तो अब उसे राजी रहता नहीं, पूरा अच्छे से बोटा कुछ इन चूल्हे को कब्जा कर लेता सो, ये अच्छी नहीं है ना, इसे छोड़ डालता वो बोल को मैं ऐसा कर रहा हूं, उन छोड़ डाले। दूसरा, नौजवान को कत्ल करवा लो मैं, नौजवान को कई को कत्ल करूंगा कहीं तो मैं, अल्लाह मुझे हुक्म दिया इसे मरने मार वाली से कत्ल करवा, कई को कहे तो उन्हें अपनी माँ बाप की नाफरमानी करता और ये कुफर करता, और इसके माँ बाप नेक लोग बुरे नहीं, नेक लोग इसके माँ बाप दोनों भी, एक जनों नहीं दोनों भी नेक लोग लगा, इसकी बच्चे की मोहब्बत में आंखों वो लगा भी कुफर कर डालते आखिर को बच्चे की मोहब्बत में। अब ये मालूम होता है हमारे बच्चों को हमें अच्छा दीन का इल्म सिखाए तो हमें सीधा नहीं है तो भी कल वो बच्चे पढ़ने को आपको अब्बा अम्मी ऐसा ऐसा कामा करे जानी कहते अल्लाह बोलता है, ऐसा ऐसा कामा करना कहते अल्लाह खुश होता कहते को बोलते बच्चे आको हम ना माँ बाप को, जब कितने बड़े बड़े आलिमा बड़े बड़े मुफ्तिया बड़े बड़े मौलाना लगा बड़े बड़े हाफिसाबा आपको समझाते हैं तो नहीं समझे सो तब फत्तर दिल रहे सो माँ बाप भी अपने छोटे मासूम बच्चे आको ये गलती कहते ये सही कहते को बोले तो फत्तर दिल भी पिघल जाता। बड़े बड़े मुफ्तिया बड़े बड़े मौलाना बड़े बड़े हाफिसाबा सी नहीं होते सो काम नन्हे नन्हे मासूम बच्चों सी हो जाता, या वो ये इसका बच्चे की मोहब्बत में आपको ये लगा नेक लोग अभी बुरे हो जाते कुफर तक का चल जाते वो बोल को अल्लाह को पहले से मालूम, अल्लाह आलिमुल गैब है, अल्लाह को पास्ट मालूम प्रेजेंट मालूम फ्यूचर मालूम, ये तीन भी अल्लाह के अकेले कुछ मालूम होने से अल्लाह ताला उसके वजह से ये लगा कुफर कर को भिड़ते होने से ऐसा नहीं हुए सरकार हना को बोल को उसे कत्ल कर डालो के फौरन वहां उसे दूसरा बच्चा भी अमल सी दिए अमल दे डाला फौरन दूसरा बच्चा अल्लाह ताला कभी तो इसे कत्ल कर डाले कि फौरन वो माँ के पेट में फिर को दूसरा बच्चा दे डाला दूसरा लड़का दे डाला और उन्हें फरमा बरदार माँ बाप की और आंखों की माँ बाप आंखों की ठंडक बनता उन नेक अल्लाह की शुक्र गुजार बंदा बनता वो बोल को खिजर अलैहिस्सलाम बोले। या हम ना हमारे बच्चों का बारे में भी ये एक वाक्य देखो, ये एक वाक्य में अगर गौर करेंगे तो हमारे बच्चों को हमें दीन का इल्म सिखाना कितना जरूरी की मालूम होता है। हम ना अगर हमें दीन पे नहीं चल रहे फिर भी हमें हमारे बच्चों को अरबी के लिए दीन का इल्म के लिए हमें उन लोगों को भिजा रहे हैं तो हमारा भी वैसा मामला होता। हम ना बड़े बड़े मुफ्तिया कितने जनो बोल कर रहते बड़े बड़े जमात वाले बड़े बड़े हाफिज साहब मौलाना ला आपको समझा को रहते भाई नमाज पढ़ना दाढ़ी छोड़ना ऐसे ऐसा नहीं करना नमाज नहीं छोड़ना वो बोल को रहते हमें समझते नहीं, लेकिन वो हमारे नन्हे नन्हे मासूम बच्चों को हमें अरबी को भिजा को वो लगा को पढ़ा को दीन का इल्म देखो वो लगा को दिए तो वो लगा आपको जब अब्बा एक रेजा नहीं कहते ऐसा नमाज पढ़ना कहते दाढ़ी पालना कहते दाढ़ी काटे जानी कहते को बोल को मासूम बच्चे अपनी माँ बाप को अम्मी को बोल को अम्मी घर में नमाज पढ़ना कहते हमें पर्दा करना कहते अम्मी हमें पूरा अल्लाह के रास्ते में चलना उसके हुक्म के ऊपर चलना कहते कुरान के मुताबिक चलना कहते अम्मी
हदीस के मुताबिक जिंदगी गुजारना कहते अम्मी को बोले तो पत्थर दिल भी वो लगा का माँ बाप का कितना पत्थर दिल भी हो पिघल जाको अपने बच्चों की वजह से वो लगा बदलती। उससे पहले कितने मौके आको रहते बदलने के, लेकिन वो लगा नहीं बदल को रहते। लेकिन कब है तो हम उलागा के खुद अपने बच्चे आपको समझाते हैं कि जब समझ दे। अब यार इससे ये बड़ी नेमत मालूम होती है। ये दो हो गया। तीसरा वो दीवार के बारे में, वो दीवार के बारे में अल्लाह मुझे हुक्म दिया, इसे तुम्हें खाली ऐसा हाथ मार को सीधा करवा लो, तो बोल को हुक्म दिया। कई को कहे तो यतीम बच्चे दो जनों है, यतीम कहे तो बाप नहीं सुनो, बच्चे यतीम नहीं सुनो, उसका बाप है नेक है, बहुत अच्छा नेक बंदा उन हमारा, उन इंतकाल हो गया, उन मर गया, उसके दो बच्चे मासूम बच्चे, वो लगा कोई ने खजाना, उसके खजाना एक जगह में रखो, उसे अंदर ढाप डाल को जमीन में, वह दीवार खड़ा करवा ले, दीवार खड़ा करवा ले उन्हें। अब वो दीवार गिर जाने आगी, वो कोपल को गिर गई तो खजाना बाहर पड़ जाता। मुसाफिरा का इकरामिश नहीं करे सुनो, खाना पानी नहीं दिए सुनो, मुसाफिरा मालदार होने के बावजूद ये दोनों यतीमों के बच्चों का माल दौलत खींच लेते नहीं, खजाने खींच लेते नहीं, को बोल को तुम्हें गारंटी देते क्या होने से अल्लाह ताला वो दीवार को सीधा करो गया, ये दीवार को सीधा करेगा कर लो, वो गिरता नहीं, वो पूरा भी अल्लाह की मर्जी, अल्लाह अपनी रहमत से अपने फजल और करम से अल्लाह ताला वो लगा को कब है तो वक्त आया को बोल अल्लाह समझता कि जब वो खजाने को खोल डाल को दोनों को दे डालता, जब ये लगा लड़ने की ताकत में हो जाते जवान हो जाको, ये लगा बच्चे लड़ सकते नहीं, ये लगा कर क्या तो खींच ले, तो होने से अल्लाह ताला मुझे इस हुक्म दिया ऐसा करो को बोल को मैं सीधा करवा रहा हूं दीवार को बोल को बोलते। ये तीन मौके पर भी एक भी मैं अपने तरफ से क्या भी करम नहीं, पूरा अल्लाह मुझे हुक्म दिया तुम्हें ऐसा करो, तुम्हें ऐसा करो, मैं पूरा अल्लाह के हुक्म के मुताबिक इस करम से एक भी मेरे मर्जी के मुताबिक करम नहीं को बोल को बोलते। मूसा अलैहिस्सलाम को खिजर अलैहिस्सलाम है, जब मूसा अलैहिस्सलाम को मालूम होता हो अल्लाह मेरे से भी ज्यादा इल्म दूसरों को और एक शोबे में और एक शोबे में दीन का नहीं तो भी अलग अलग इसमें अलग अलग इल्म दिया, वो बोल को मूसा अलैहिस्सलाम को सबक सिखाता अल्लाह ताला। ये दो अहम वाकयात थे सूरह कहफ के। इंशाअल्लाह मैं अगले जुम्मा जुल्करनैन सूरह कहफ का आखिरी वाकया इंशाअल्लाह मैं आपके सामने अगले जुम्मा बयान करूंगा। अल्लाह ताला से दुआ करता हूं कि जो बात हमारे सामने आई है इसमें अगर गलतियां हुई तो अल्लाह ताला माफ फरमाए, और कहने से सुनने से ज्यादा हम सबको इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।